जो लोग टैली प्राइम सीखना चाहते हैं, टैली प्राइम अकाउंटिंग एप्लीकेशन सीखना चाहते हैं, उनको बिल्कुल अकाउंट्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है या उनके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, अकाउंटिंग फंडास उनके क्लियर नहीं है, तो डेफिनेटली ये सेशन काफ़ी आपको हेल्प करेगा। कॉमर्स के स्टूडेंट को भी काफ़ी हेल्प करेगा, स्पेशली 11th और कॉमर्स 11th और 12th के स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप टैली सीखना चाहते हो तो इस सेशन आप गौर से देखिए, ताकि आपको अकाउंटिंग समझ में आएगी। अकाउंटिंग अगर आपको समझ में आती है तो आपको फाइनेंस में बहुत कुछ समझ में आएगी, आप इफिशिएंटली फाइनेंस को मैनेज कर सकते हो। आप सेशन देखिए। दिस पर्टिकुलर लेक्चर टैली प्राइम, ओके, इट्स एन एप्लीकेशन which actually manages what? It manages accounts. You can computerize your accounts. You can manage accounts digitally. So basically this application we are going to learn, and this is the most widely used application on Asian continent. Most widely used application today. India mein, Bangladesh and other part of Pakistan and other part of the Asia, we can see this particular application is used very widely. बहुत काफ़ी इसका इस्तेमाल होता है, and everybody has to learn this particular application. See, this application actually manages what? Accounts. So basically important here is that we need to have a basic knowledge of accounts. The basic concepts of accounts we have to understand. हमको basic concept of account होना मालूम होना ज़रूरी. Without understanding the basic concepts of accounts, understanding this particular word tally would be very difficult for you. You cannot understand even, because why the tally is used, that is the basic one is accounts. So what do you mean by accounts? Account is what actually? Accounts means what? Anybody who from commerce background, who is from commerce background, can tell me what is accounts? What do you mean by account or bookkeeping? You must have learned bookkeeping, you must have learned accounts. What do you mean by the accounts? So accounts means the total calculations from the first year to last. See, if you say calculations are different types. Even scientific calculations are there. So many calculations are there. Okay, it calculates, but if it follows a particular system. See, we are into some business. We go and do some businesses. Everybody today, you are in some particular businesses. There's so many companies we see, so many organizations we see, so many shopkeepers we see. They are all in business. What do you mean by business then? Second term is what? What do you mean by business? We'll come back to the definition of accounts. First, we need to understand what is business. Because for business, you need accounts. If you do any business, you need accounts. Okay? Tell me, what do you mean by business? An entity or an organization which sells goods and services. Means any particular organization which does business for earning profits, okay, or services, giving the services, okay. So when you do some business, basically to earn profits. What is the aim? To earn profits, okay. And where you have some transactions with you do some transactions, okay. There are some transactions, they are named as financial transactions, where you buy something, you sell something, you pay something. Those transactions you do regularly. Sometimes in a day, thousands and thousands of transactions we do every day. So to manage those transactions in particular system, we have to have a particular system where we can manage those transactions, and at the end of the year or end of the particular period, we can what? We can find that we are in the profit or loss. And what properties we have, what losses we have done, और what liabilities we have to pay, कितना कर्जा है हमारे ऊपर, कितनी चीज़ें हमारे पास है, ये balances हमको मालूम होना ज़रूरी है. तो जो अकाउंट्स है उसके जो स्टेटमेंट्स है, फाइनली जब अकाउंट्स हम करते तो दो फाइनल स्टेटमेंट्स हमारे पास आते हैं. कौन से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज योर प्रॉफिट इन प्रॉफिट और लॉस, बट बैलेंस शीट शोज what balances
what balances do you have, and that particular, for that to find out those balances and profit, you need a particular system, and that is called accounting system. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अकाउंटिंग सिस्टम, जो हमको एंड में हमको बताता है कि हमारे पास बचा कितना है, क्या बचा है हमारे पास, ओके। और दूसरी चीज क्या है कि हम प्रॉफिट में या लॉस में, यह भी पता था हमको हमने किसी को क्या पे किया, इससे क्या खरीदा, सब कुछ रिकॉर्ड्स हमको मिलते हैं फाइनेंशियल। तो सबसे पहली जो चीज़ है, हम लोग बिजनेस की तरफ आते हैं। आप जब अकाउंट्स रखना चाह रहे हो तो आपके पास 3 टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस आपको दिखेगी, 3 टाइप्स की इंडस्ट्रीज है जो नॉर्मली हम लोग अपने अराउंड में देखते, वी सी अराउंड, सी समटाइम वी सी ऑल दोस अराउंड अस, जो कि सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर। वन ऑफ देम थे, 3 ऑफ देम आई हैव मेंशन हियर, सर्विस इंडस्ट्री, ट्रेडिंग इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिंग इंडस्ट्री? व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस इंडस्ट्री? आप किस इंडस्ट्री का अकाउंट रख रहे हो, किस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट रख रहे हो? आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्विस देती है या ट्रेडिंग करती है या फिर मैन्युफैक्चरिंग करती है? इसमें क्या फ़र्क है सर्विस इंडस्ट्री में और ट्रेडिंग इंडस्ट्री में और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में? क्या फ़र्क है? Sale of goods and okay, goods you can say, basically you can say selling of goods. जो इंडस्ट्री सिर्फ सर्विसेज बेचती है, सर्विसेज मीन्स के इंटेंजिबल चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल हम डॉक्टर के पास जाते हैं, नॉट द ऑपरेशन, इवन वो भी इंटेंजिबल सर्विस हो गया बट इन अ डिफरेंट वे, पर लेकिन हम हमसे कंसल्ट करते हैं और वहाँ तक के जाने का जो भी प्रोसेस होता है, काउंटर पर देन जो नर्स होती है वो सब, वो एक सर्विस प्रोवाइड। अभी यहाँ पे कोई ऐसी सर्विस बिक रही है? यस, लाइक एजुकेशन, इट्स अ सर्विस। एक चीज़ सर्विस इंडस्ट्री में ये होता है कि सर्विस इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट होता है वो किसी फॉर्म या शेप में इंटेंजिबल उसको टच नहीं करना। सर्विसेज जो है ना वो टेंजिबल नहीं है, मतलब जो नज़र नहीं आती आपको। सर्विसेज एक कैसे, आप स्टेट सर्विसेज, आपको स्टेट में स्टेट की सर्विसेज आप लेते हो बाइंग एंड सेलिंग के लिए, एजुकेशन आप ले रहे हो, मेडिकल ले रहे हो, एडवोकेट के पास जा रहे हो, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये एक स्किल्स है जो आप उससे लेते हो, वो नज़र नहीं आती। तो ये सर्विस इंडस्ट्री है, उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट नहीं होता है। लेकिन ट्रेडिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्ट होता है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी प्रोडक्ट होता है। अब दोनों में क्या फ़र्क है? ट्रेडिंग में प्रोडक्ट बाय एंड सेल किए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट बनाया जाता है। बाय सेल नहीं करते, बाय होता है पर वो लाके रॉ प्रोडक्ट्स बाय होते हैं। ट्रेडिंग इंडस्ट्री सिर्फ किसी कंपनी का प्रोडक्ट लेती है और वो बेचती है। ट्रेडिंग इंडस्ट्री, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं? दे डोंट मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, ओके, दे ओनली डू व्हाट, दे ओनली सेल द प्रोडक्ट। वो खाली सिर्फ प्रोडक्ट को क्या करते हैं? बेचते हैं। लॉट्स ऑफ कंपनी वो अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं पर लेकिन वो अपना लेबल लगाते हैं। हो सकता है, पॉसिबल है, कहीं से लेता है, वो मैन्युफैक्चरिंग में आता है, वो असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग में आता है। फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में ये ज़्यादा होता है, लाइक फिर भी वो मैन्युफैक्चरिंग में ये आता है। इवन द असेंबल प्रोडक्ट वो असेंबल होता है, जैसा पीसी में भी है, बट वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में था। अभी फ़र्क क्या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में और ट्रेडिंग इंडस्ट्री में? बेसिकली फ़र्क क्या है? रॉ मटेरियल का फ़र्क है। यहाँ पे रॉ मटेरियल आपका आता है, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो, बाद में वो इंडस्ट्री में बिकने के लिए जाता है। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल है आपको, मतलब आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो ये तीनों इंडस्ट्री डिफर करती है। अभी नीचे की 2 इंडस्ट्री में एक कंसेप्ट आता है, अभी किसको मालूम है डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री? हु नोज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री? अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री का फर्क क्या है? अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री का फर्क क्या है? Anybody can say? तो इन्वेंटरी जो स्टॉक का है, इन्वेंट्री व्हेन यू मैनेजेस द स्टॉक। सी, अभी ट्रेडिंग इंडस्ट्री है, पहले तो 2 चीज़ करेगी ना, वो प्रोडक्ट को परचेज करेगी। व्हेन दे विल परचेज द प्रोडक्ट, दे विल पे सम मनी एंड देन दे विल कीप द रिकॉर्ड कि कितना प्रोडक्ट उन्होंने परचेज किया, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट, है ना, और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट दे हैव परचेज्ड। अभी जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको दूँ, 2 एग्जाम्पल देता, पेन या मोबाइल परचेस हो गया, तो इसको 2 तरीके से बोला जा सकता है। आपके पास कितने मोबाइल है स्टॉक में? आपने बोला 1000 मोबाइल स्टॉक में,
और दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं हम, और दूसरा तरीका क्या है, 10 लाख रुपए के मोबाइल स्टॉक में। ये दो तरीके हो गए ना, आपने बोला 1000 मोबाइल स्टॉक में है, या आपने क्या बोला 10 लाख रुपए के मोबाइल स्टॉक में है। तो दोनों में क्या फर्क है, एक नंबर्स बताता है कि क्वांटिटी में कितनी है, और एक प्राइस बताता है। प्राइस जो बताता है ये अकाउंट्स माना जाता है, और जो नंबर्स बताता है कि कितने नंबर्स में स्टॉक मौजूद है, और कि कितने नंबर्स में स्टॉक आया था, इन हुआ था, तो वो जो चीज़ है वो क्या मानी जाती है, इन्वेंट्री मानी जाती है। अरे दोनों का कॉम्बिनेशन से हम अकाउंट्स को मैनेज कर लेते हैं। जब हम किसी को बोलते हैं हमने इतने का बेचा, व्हाट इज दिस, मैंने इतने का, इतने नंबर का प्रोडक्ट, इतने क्वांटिटी बेचे, मैंने इतने प्राइसेस के बेचे। जब मैं ये बोलूँगी इतने प्राइसेस के बेचे, तो ये अकाउंट से, ये इन्वेंट्री है, ये अकाउंट से। मैंने इतने नंबर्स बेचे, ये क्या हो गया, इन्वेंट्री। तो पहले इसका फर्क समझना अपने को जरूरी है। देखो है ना, इनटेंजिबल सर्विसेज को क्या बोलेंगे हम लोग, सर्विसेज जो इनटेंजिबल है, और बाय एंड सेल गुड्स को क्या कहेंगे, ट्रेडिंग कहेंगे। सिर्फ वहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, यू कैन गो विद द डेफिनेशंस, ओके, यू कैन गो विद द डेफिनेशंस। और ये 3 इंडस्ट्री है जो आपको देखना चाहिए। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट एंड स्टेप्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। अकाउंट्स सबसे पहली बात ध्यान में रखिए, अकाउंट्स अगर आप कर रहे हो तो अकाउंट की सबसे मेन चीज क्या है, ट्रांजैक्शन। क्या मेन चीज है, ट्रांजैक्शन। जो आप बाय कर रहे हो, जो आप सेल कर रहे हो, जो आप पेमेंट्स कर रहे हो, जो एक्सपेंसेस कर रहे हो, जो इनकम से इनडायरेक्ट हो रहा है आपको, वो सारे क्या कहलाते हैं, दे आर ऑल कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन। तो एक दिन में आपकी कितनी ट्रांजैक्शन होती है, उस सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना जरूरी है। और सिस्टमैटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग दोस ट्रांजैक्शन क्या कहलाता है, अकाउंट्स। एक पर्टिकुलर सिस्टम फॉलो करके वो ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, पर्टिकुलर हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको ट्रांजैक्शन मालूम होना चाहिए। अच्छा, आपके पास ट्रांजैक्शन कौन से फॉर्म में पूछती है, आपके पास ट्रांजैक्शन कौन से फॉर्म में आती है। नॉर्मली एक अकाउंटेंट बैठा है वहां है, तो उसको ट्रांजैक्शन कहां से आती है, वो अकाउंटेंट है ना, वो डिपार्टमेंट में उसका ट्रांजैक्शन कहां से आती है, कैसे फॉर्म में ट्रांजैक्शन आती है, कौन बता सकता है कौन से फॉर्म में ट्रांजैक्शन आती है। डिजिटल ट्रांजैक्शन कौन से फॉर्म में आती है, मतलब डिजिटल हो, एक्चुअली ट्रांजैक्शन हो, ये ट्रांजैक्शन हो गई है, दिस ट्रांजैक्शन हैज हैपेंड। तो वो अकाउंटेंट को कैसे मालूम पड़ता है कि ये ट्रांजैक्शन परचेज है, ये ट्रांजैक्शन सेल है, ये ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस है, और अकाउंटेंट को कैसे मालूम पड़ता है। और डेबिट तो बाद में करेगा ना, डिपार्टमेंट से सेल्स का, अगर सेल्स हो गया, ट्रांजैक्शन परचेज हो गया है, तो कैसे पता चलेगा अकाउंटेंट, रिसिप्ट पेमेंट में आता है, रिसिप्ट बराबर, यू आर क्लोज टू दिस। आपको बिल्स आते हैं, आपको इनवाइसेस आते हैं, आपका परचेस इनवाइस आएगा, आपका सेल्स इनवाइस अकाउंटेंट को पहुंच जाता है। वो जो इनवाइसेस और जो मेमोज है वो एक्चुअली क्या है, आपके ट्रांजैक्शन है। परचेस बिल अकाउंटेंट के पास आ गया, तो किससे परचेस किया, कितने का परचेस किए, कितनी क्वांटिटी परचेस की गई, वो बिल बताता है ना। ये परचेस ट्रांजैक्शन हो गए, दिस इज कॉल्ड परचेस ट्रांजैक्शन। सेल किया तो सेल ट्रांजैक्शन, आपने सैलरी पे की है तो सैलरी का रिकॉर्ड आ जाता है, रिसिप्ट आ जाती है कि सैलरी पेड हो गई, कितनी पेड हो गई, तो फिर सैलरी पेड ट्रांजैक्शन आएंगी, पेमेंट ट्रांजैक्शन आएंगी। अंडरस्टूड। तो सबसे पहले आपको क्या समझना चाहिए, ट्रांजैक्शन क्या होती है, मतलब आपका सेल। सेकेंड, आपके पास जब ट्रांजैक्शन आ जाती है ना, तो अकाउंटिंग सिस्टम में, मैं ज़्यादा डीप में थेरी में नहीं जा रहा हूँ बराबर अकाउंट की, आपको बेसिकली मेरे को 1 घंटे में समझाने का है, इसलिए मैं वो थेरी नहीं ले रहा, मैं डायरेक्ट जंप कर रहा हूँ किसमें, पर्टिकुलर वे में कैसा। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ट्रांजैक्शन को एक्चुअली लेजर में पोस्ट करना होता है। किसमें पोस्ट करना होता है, लेजर में। नाउ देयर इज टर्म कॉल्ड लेजर। लेजर क्या होता है, आई विल कम बैक टू दैट, डोंट वरी। फिर उसके बाद वो लेजर करने के लिए आपको लेजर बनाना है, लेजर रखना है, ट्रांजैक्शन लेजर में पोस्ट करनी है, एक सिस्टम है। उसके बाद क्या होगा, वो लेजर बनाने के लिए आपको क्या लगेगा, एंट्री लगेगी। क्या लगेगी, एंट्री लगेगी। और एंट्री के बाद तुमको एक पोस्टिंग इनटू जर्नल लेजर में जाएगा, हम लोग जर्नल लेजर में चले जाएंगे, वो सारी एंट्रीज को एक जर्नल लेजर में लिखेंगे और वहाँ से पोस्ट करेंगे, किसमें, लेजर में पोस्ट करेंगे। जब वो लेजर में पोस्ट हो जाने के बाद आपको फिर ट्रायल बैलेंस मिलेगी, वो बैलेंसेस मिलेंगे, और बैलेंसेस मिलने के बाद फिर आप क्या बनाओगे, फाइनेंशियल
स्टेटमेंट्स बनाओगे, करेक्ट। तो अब यहाँ से क्वेश्चन खड़ा होता है कि लेजर क्या है, एंट्री क्या है। ये बेसिक्स अगर आपको समझ में आ गया तो अकाउंट्स आपको बेसिकली समझ में आएंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा देखेंगे नीचे कि ट्रांजैक्शन, पहले हम लोग देखते हैं कितने टाइप की ट्रांजैक्शन है। देखो ये ट्रांजैक्शन है, सेल्स ट्रांजैक्शन है, सेल्स ट्रांजैक्शन है। कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है? सेल्स ट्रांजैक्शन, परचेज ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांजैक्शन। व्हाट इज बैंक ट्रांजैक्शन? व्हेन यू डिपॉजिट द मनी, ओके। बैंक ट्रांजैक्शंस है। नीचे चलिए, एक्सपेंसेस ट्रांजैक्शन। व्हाट आर एक्सपेंसेस ट्रांजैक्शंस? खर्चे, जो भी खर्चे, पेमेंट है, बिल्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है। अभी हम लोग आ रहे हैं, अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग कंपनी है, तो इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन आएगी। आपके कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी परचेज हुए, कितने क्वांटिटी नंबर ऑफ सेल हुए। लोन एंड फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन आएगी आपकी। आपने किसी को लोन दिया है क्या, आपने फाइनेंस किया है किसी को। व्हाट इज पेरोल ट्रांजैक्शन? पेमेंट, लाइक एम्प्लॉइज को जो पे करता है। द पेमेंट इज डन टू एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, उसको पेरोल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। देन टैक्स ट्रांजैक्शन, जब आप गवर्नमेंट को पे करते हो एट द एंड ऑफ, ओके। कैपिटल ट्रांजैक्शन, ये बड़ा टर्म है, हम लोग उसमें नहीं जाते हैं, बट देयर आर सम काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा। तो ये ट्रांजैक्शन आपको समझ में आई, इतनी सारी ट्रांजैक्शन है। उसके बाद हम चलते हैं हाउ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, ओके, इन अकाउंट्स, ओके। कैसे ट्रांजैक्शन आर द एक्टिविटीज दैट नीड टू बी रिकॉर्डेड। वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना जरूरी। जैसे मैंने आपको बोला, किधर रिकॉर्ड करेंगे आप? लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अभी नीचे का जो पैरा है, देखो, लेजर अकाउंट्स कैटेगराइज दिस ट्रांजैक्शन टू ट्रैक चेंजेस एंड मेंटेन एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। अब ये लेजर अकाउंट कैटेगराइज करता है, क्या कैटेगराइज करता है कि वो जो ट्रांजैक्शन हुई है आपकी, वो सेल्स है, वो परचेज है, वो किसको दी हुई, अपने डेटर को दिए, अपने लोन दिया, अपने सैलरीज दिए। ये सारे लेजर के जरिए पता चलती है कि वो ट्रांजैक्शन किसके लिए हुई है और किसको पेमेंट हुआ है। तो जो लेजर वो पूरा कैटेगरी बना देते कि कौन किसने खरीदा, कितने का खरीदा गया, है ना, किसको पे किया गया, एम्प्लॉय को पे किया गया तो एम्प्लॉय को कितना पे किया गया, ये सारा एम्प्लॉय को पे किया गया, तो कैटेगरीज ऑफ सैलरीज हो जाएगी। बैंक में आपने डिपॉजिट किया तो कैटेगरी क्या होंगी? बैंक होंगी। कैश की डिपॉजिट हो, कैश की ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल, पोस्टिंग टू लेजर अकाउंट्स, अपडेटिंग बैलेंसेस एंड यूजिंग द लेजर टू प्रिपेयर व्हाट? फाइनेंशियल रिपोर्ट। लेजर बनाना बहुत, तो आपको लेजर को ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये डेफिनेशन ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी, हम आगे जाएंगे तो समझेंगे आपको, लेकिन ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले क्या, ट्रांजैक्शन को आपको क्या करना चाहिए? ट्रांजैक्शन जो है ना, अब आएंगे आगे हम लोग, ट्रांजैक्शन को आप सबसे पहले क्या देखोगे कि ट्रांजैक्शन जो हुई है उसमें कौन इफेक्ट हुआ है। जैसे एक सेल्स ट्रांजैक्शन हो गई, मान के चलो सेल्स ट्रांजैक्शन, मेरे सामने इनायत बैठा है, मैंने इनायत को 10,000 का प्रोडक्ट बेचा, तो इसमें कौन इफेक्ट हुआ है? मेरे हिसाब से मैं बेचने वाला हूँ और मैंने इनायत को बेचा, तो मेरे हिसाब से कौन इफेक्ट हुआ है इसमें ट्रांजैक्शन में? क्या 3 चीजें इफेक्ट हुई है? किसको बेचा, किसको बेचा, क्या बेचा, और तीसरा हो सकता है कैश में बेचा या क्रेडिट पे बेचा। तो ये इफेक्ट हुए, ये 3 नाम आएंगे। इनायत को बेचा गया, 10,000 का सामान बेचा गया, और क्या बेचा गया, कौन सा सामान बेचा, हार्ड डिस्क बेची गई, रैम बेची गई, मोबाइल बेची गई। तो ये पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से अकाउंट्स उसमें इफेक्ट होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। आहिस्ते आहिस्ते समझा। फिर क्या होता है कि ट्रांजैक्शन को आपको अगर लेजर में डालना है तो आपको एंट्री बनाना पड़ेगी, और एंट्री बनाने के लिए अप्लाई दी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो आपको एंट्री बनाने की है तो आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट मालूम होना पड़ेगा। तो हम लोग आ जाते हैं, लेजर हमको प्रॉपर मालूम होना चाहिए, हमको एंट्री प्रॉपर मालूम होना ज़रूरी है, और फिर क्या मालूम होना ज़रूरी है? गोल्डन रूल्स मालूम होना चाहिए। तो 3 चीज़ को ध्यान में रखना, 3 चीज़ को आप ध्यान में, ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाऊँगा, ओके। आइडेंटिफाई की एंट्री क्या है, देखो एंट्री क्या है, इधर ये एंट्री है। अब एंट्री क्या होती है? मान के चलो मैंने एक एग्जांपल लेता हूं, आपको एंट्री का एक एग्जांपल लेता। ट्रांजैक्शन मेरे बीच में किसके बीच में हुई थी? इनायत के बीच में। अब मैं आपको ऐसा बोल दूं भाई, मैं ऐसा बोलूँगी, जिसको बेचा गया है ना, जिसको प्रोडक्ट मिला है, उसके पहले बाय लगता है। जिसको प्रोडक्ट मिला है
उसके पहले बाय लगता है, और जो गया है, टू लोग जो निकल गया है, उसके पहले क्या लगता है? देखिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टू लगता है, समझे? अभी मैं तुमको एक ट्रांजैक्शन और बताता हूँ, ओके? मान के चलो मैंने ऐसा बोल दिया, बाय सालेहा टू फ्रिज। बाय, बाय मतलब बी वाई बाय, नॉट बाय, बी यू वाई बाय नहीं, बाय मतलब बाय, बी वाई बाय, बाय सालेहा टू फ्रिज। तो ट्रांजैक्शन क्या हुई होगा? सोलिया ने परचेज किया फ्रिज को। बोलो बोलो, बराबर बोल रहे हो। सोलिया ने फ्रिज को परचेज किया। सालिया ने फ्रिज को परचेज किया, इसलिए सालिया क्या हो गई? सालिया को फ्रिज मिल गया है। तो ये जो फॉर्म है ना एंट्री का, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको क्या कहते हैं? एंट्री कहते हैं। तो ये उसमें से निकालना होता है, उसमें से तीन जो इफेक्ट करते हैं उसमें से अपने को क्या निकालना है? ये तीन चीजें निकालने। ये देखो, एक एंट्री है, ओनर स्टार्टेड द कंपनी विथ रुपीज 10 लाख रुपीस। एक ट्रांजैक्शन पहले हुई, कंपनी शुरू किए तो एक ट्रांजैक्शन हुई का ओनर ने कंपनी में क्या लेके आया? पैसा लेके आया। तो इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? तुमको मैं एंट्री बता रहा हूँ, एंट्री का कॉन्सेप्ट। ये ट्रांजैक्शन थी, उसको आपको एंट्री में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? एंट्री में कन्वर्ट करना है। तो एंट्री उसकी कैसी की गई है? कैश अकाउंट डेबिट किया गया है, बातों में कैश को डेबिट को लेफ्ट में लिखा गया है, और राइट में क्या लिखा गया है? टू कैपिटल, और वो अमाउंट लिखी गई है। ये जो फॉर्म है ना, इतना जो ऊपर का फॉर्म दिखता है, इसको क्या बोलते हैं? एंट्री बोलते हैं। इस फॉर्म में लाना है हमको, ट्रांजैक्शन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? इस फॉर्म। अभी नीचे देखो, ट्रांसफर रुपीज 50,000 इन कैनरा बैंक। पैसा किसको मिला है? कैनरा बैंक को पैसा मिला है। समझ में आया? तो ये ट्रांजैक्शन भी कैनरा बैंक डेबिट हो गई, उनके पास पैसा आ गया है, और टू कैश क्या हो गया है? क्रेडिट। तो ये डेबिट और क्रेडिट की तरफ हम लोग भी आते हैं। इसको डेबिट और क्रेडिट किसको बोलते हैं? व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट? ठीक है। फिर नीचे चलिए, आप पेड डिपॉजिट रुपीज 50,000, ओके? अब उसके नीचे की ट्रांजैक्शन देखो, पेड रुपीज 80,000 फॉर डेकोरेशन ऑफ द प्रीमाइसेस। अभी ये ट्रांजैक्शन भी हुई है जिसमें हम लोग डेकोरेशन के लिए पैसा पे किया। उसको कैसा लिखा गया है? उसको कैसा लिखा गया है? डेकोरेशन को डेबिट किया गया है, जो लेफ्ट साइड में वो डेकोरेशन को डेबिट किया गया और टू कैश क्रेडिट किया। अब ये समझने के लिए आपको, ये एंट्री समझने के लिए आपको अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स को समझना जरूरी है कि डेबिट क्रेडिट है क्या, डेबिट क्रेडिट होता क्या है। तो पहले एंट्री बनानी है, और एंट्री बनाने के लिए आपको डेबिट और क्रेडिट मालूम होना जरूरी है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द डेबिट एंड क्रेडिट, देन यू कैन नॉट डू द एंट्रीज। लेजर अकाउंट हम लोग बाद में देखेंगे, लेजर अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है करके। अभी आपका एंट्री के लिए आपको क्या है, आपको क्या मालूम होना चाहिए? डेफिनेशन देखो, डेबिट मालूम होना जरूरी है। एन एंट्री इज रिकॉर्डेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द अकाउंटिंग सिस्टम इन्वॉल्व डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन अकाउंट्स। के चेंजेस कैसे हुए? इट स्टार्ट विद द जनरल एंट्री एंड इट्स लेटर पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट। समझ में आया? accounting accounts providing a systematic way to track and manage financial activities। इसी से मालूम है। अब नीचे चलते तो क्या, इन अकाउंटिंग डेबिट एंड क्रेडिट आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। आपको डेबिट क्रेडिट मालूम होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट यूज्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, मेंटेन बैलेंस इन द अकाउंटिंग सिस्टम। हियर इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। देखो डेफिनेशन, डेफिनेट क्या है? डेबिट क्या होता है? एन एंट्री रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट लेजर और जर्नल। अभी जब आप अकाउंट लेजर बनाएंगे ना, तो लेजर के दो साइड होंगे। लेजर के क्या होंगे? सिंपल बताओ, दो साइड होंगे। कौन से दो साइड होंगे? एक राइट साइड और लेफ्ट साइड होगा। एक पेज के दो हिस्से कर दो, एक पेज के दो हिस्से कर दो, लेफ्ट और राइट। तो जो लेफ्ट है ना, जो लेफ्ट में जितना भी लिखोगे वो क्या कहलाएगा? वो डेबिट कहलाएगा। और राइट में जितना भी लिखोगे वो क्या कहलाएगा? तो ये समझ हुआ? डेबिट जितना भी लेजर की जहां लेफ्ट साइड में आप लिख रहे हो क्या होगा? डेबिट होगा। और जो भी राइट में लिखोगे वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। अभी देखो एसेट्स क्या होता है?
डेबिट से क्या क्या फर्क पड़ता है? एसेट्स किसको बोलते हैं हम लोग, कैसा इफेक्ट होता है? एसेट्स किसको पता है मालूम है? जो कंपनी में जो जितना भी प्रॉपर्टीज है, फर्नीचर है, लैंड है, ओके, अब कैसे इफेक्ट होता है देखो, फर्नीचर है, लैंड्स है, जब वो डेबिट की जाती है ना तो बढ़ती है, मतलब वो बढ़ गया है, वो क्या आ गया, बढ़ गया, इतना याद रखना, वो बढ़ता है। एक्सपेंसेस देखो, एक्सपेंसेस भी होता है जब डेबिट करेंगे ना एक्सपेंसेस, इसका मतलब एक्सपेंसेस हुए, एक्सपेंसेस क्या हो गए, बढ़ गए। तो डेबिट करेंगे एक्सपेंसेस मतलब क्या हुआ, हम लेजर के कौन से साइड में लिखेंगे, लेफ्ट साइड में। समझ में आया तुमको? तो ये ध्यान में रखना चाहिए। नीचे चलिए, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी, ये भी इंक्रीज होती है। लाइबिलिटीज को बोलते हैं जो कंपनी पे कर्जा है, कंपनी पे कर्जा है, ठीक है, वो हम लोग बोलेंगे। रेवेन्यू, जनरल रेवेन्यूज है, कभी कभी हो जाते हैं, मिलते हैं अपने को, इनडायरेक्ट रेवेन्यूज मिलते हैं, वो हम लोग बाद में करें। अभी क्रेडिट में जाते, एग्जाम्पल दिया, देखो एग्जाम्पल, इफ यू परचेज ऑफिस सप्लाईज फॉर ₹100 इन कैश, कोई भी ऑफिस सप्लायर से कुछ परचेस करते हो तुम, ऑफिस सप्लाई से परचेस करते हो, कोई भी पेन है, कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो, कितने रुपए का परचेस करते हो, ₹100 का, ओके। तो क्या होगा, यू डेबिट द ऑफिस सप्लाईज, तो ऑफिस सप्लाई को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे, क्योंकि वो बढ़ गया, बाद में मैं आता हूँ। और क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे, कैश। अब ये कैसा करते हैं ना वो लोग देखेंगे, हम लोग अभी देखेंगे थोड़े दिन में कैसा किया जाता है, और उस रूल की तरफ हम लोग आएंगे, ठीक है। फिर देखो क्रेडिट क्या होता है, एंड एंट्री रिकॉर्डेड ऑन दी राइट साइड ऑफ दी एंड लेजर अकाउंट, राइट साइड ऑफ एंड लेजर अकाउंट, ओके। एसेट्स क्या होता है, अगर क्रेडिट में लिखेंगे तो एसेट्स क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, अगर लेफ्ट में लिखते हैं तो इंक्रीज होंगे, तो राइट में लिखेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएंगे। एक्सपेंसेस डिक्रीज होते हैं, लायबिलिटीज डिक्रीज होती है, ओके। नीचे एग्जाम्पल दिया है। चलिए, अब ट्रांजैक्शन को बनाने के लिए, एंट्री को बनाने के नीचे का ये इंपॉर्टेंट है, अभी ये ऊपर का थोड़ा, अभी क्या आपको टाइप्स ऑफ, आपको एनालिस द ट्रांजैक्शन एनालाइज करने के अकाउंट्स मालूम होना जरूरी, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, वो जो भी जिसको भी बेचते हो, जो भी चीज़ खरीदते हो, और जो भी आपका जाता है, वो इन 3 ग्रुप में आता है। अगर इंसान इन्वॉल्व है, किसी इंसान को आपने पैसा दिया या किसी इंसान ने आपको पैसा दिया, तो क्या हो जाएगा, वो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और कोई चीज टैंजिबल है, कोई चीज टैंजिबल है जो दिखती है आपको, वो खरीदी गई है, जैसे फर्नीचर है, लैंड है, मशीनरीज है, जो आपको दिखती है, वो चीज कहीं भी दिखे आपको अकाउंट्स में, तो कौन से ग्रुप में चली जाएगी, वो रियल में जाएगी। और जो चीज नजर नहीं आ रही है लेकिन हो गई है, जैसे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आपने कभी देखा है, शक्ल है एक्सपेंसेस की, प्रॉफिट की कोई शक्ल है, इनकम की कोई शक्ल है? तो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो दिखते नहीं कभी, लेकिन एक्सपेंसेस, सैलरीज आपने दी है तो सैलरीज की कोई शक्ल है, टेलीफोन बिल आपने भर दिया है, उसका एक्सपेंसेस की कोई शक्ल है? तो उसकी कोई शक्ल नहीं है, वो नॉमिनल अकाउंट्स में चली जाती है। तो पहले आपको ध्यान में रखना है कि अगर इंसान इन्वॉल्व है तो कौन से ग्रुप में चला जाएगा, पर्सनल अकाउंट। चीज इन्वॉल्व है, रियल अकाउंट में। और कोई ऐसी चीज आई सामने जो एक्सपेंसेस के फॉर्म में या इनकम के फॉर्म में, उनकी कोई शक्ल नजर नहीं आ रही, वो क्या मानी जाएगी, ये आप समझे? आपको इसको भूलना मत, इसको ध्यान में रखो, इसके बाद ही एंट्री आपको समझ में आएगी, ठीक है। ये रूल है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स में। रियल अकाउंट के लिए क्या रूल है, बोलो, चलो पढ़ो आप लोग। डेबिट कम्स इन, क्रेडिट, ठीक है। लेजर याद है, डेबिट किधर लिखा जाता है और क्रेडिट किधर लिखा जाता है, इतना याद है ना आपको। नाउ कम टू दिस, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट, अगर कोई फर्नीचर खरीदा गया है, फर्नीचर खरीदा है तो कम्स इन है क्या गोज आउट है, कम्स इन है। तो लेजर के किधर आएगा, लेफ्ट के राइट में, लेफ्ट में आएगा। लेजर के किधर आएगा, वो लेफ्ट में। आप समझ में आया इतना, इतना ध्यान में रखो। वो आया है, फर्नीचर आपके पास आया, अगर फर्नीचर आपने बेचा है तो क्योंकि वो चला गया, गोज आउट। कोई भी चीज चली गई है वो गोज आउट में चली जाएगी। चलो पर्सनल अकाउंट में 2 वर्ड कौन से, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ओके। अच्छा, मान के चलो इनायत ने मुझको पैसा दिया, इनायत ने मुझको पैसा दिया, इसमें रिसीवर कौन है और गिवर कौन है? तो इनायत को मैं किधर लिखूंगा, क्रेडिट कर दूंगा।
और इनायत का नाम किधर आएगा? जैसा डिपेंड करता है अकाउंट के कौन से साइड में ऊपर डिपेंड करता है, बाद में हम लोग देखेंगे उसको कैसा करेंगे। ओके, समझ में आपको? तीसरा क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। अभी मैंने सैलरी पे की तो मेरा एक्सपेंसेस हुआ कि इनकम हुआ? तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। और मेरे को कमीशन मिला तो क्रेडिट होगा। ये समझ में आया? तो इसमें आपको फर्नीचर बोला तो कौन से अकाउंट में आएगा? रियल अकाउंट। मशीनरी बोले तो कौन से अकाउंट में आएगा? गुड्स बोले तो कौन से अकाउंट में आएगा? रियल है। कैश कौन से अकाउंट में आएगा? कैश कौन से अकाउंट में आएगा? कैश रियल अकाउंट के कैश है, कैश आपको नजर आती है, तो कैश भी टेंजिबल है, नजर आती है, तो रियल अकाउंट में। तो अभी मैं पूछता हूँ कैश मेरे पास आई, समझे ना? तो डेबिट होगी क्या क्रेडिट होगी? क्या होगी? डेबिट होगी। क्या आती है ना, रियल में है तो डेबिट होगी, और गई तो क्रेडिट होगी। ठीक है। पर्सनल अकाउंट में ए ने मुझको पैसा दिया तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? ए डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? ए ने मुझको पैसा दिया, ए गिवर हो गया ना मेरा, मैंने ए को पैसा दिया, ए को मैंने पैसा दिया, तो ए मैंने, मेरा कुछ नहीं है, मैं ए को क्या कर रहा हूँ? ए को मैंने पैसा दिया तो ए डेबिट क्यों होगा? ही इज द रिसीवर। करेक्ट, ही इज द। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आता है तो आप समझो मैक्सिमम अकाउंट्स आपको समझ में आ गया। आपको क्या ध्यान में रखना है? तीन कौन से अकाउंट के टाइप से? एंड नॉमिनल। तीनों के रूल्स आपको मालूम होना चाहिए। कौन से रूल है? पर्सनल का रूल क्या है? क्रेडिट द गिवर। और रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज। जिसने ये रूल को, मैं अपनी कॉमर्स मैंने पूरा किया 1987 या 88 में पूरा किया, जब से रूल वैसे ही है और आगे भी वैसे ही रहेंगे। ये फाउंडेशन ऑफ अकाउंट्स है। ये अगर आपको समझ में आता है तो आपको पूरा अकाउंट्स समझ में आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो आपको फिर से बोलता हूँ, ये तीन टाइप दबने का। अगर किसी ने मुझको पूछा, आपको मान के चलो मैंने टेलीफोन बिल भरा, तो ये टेलीफोन बिल कौन से अकाउंट में जाएगा? वो एक्सपेंसेस है, इसलिए वो नॉमिनल में जाएगा। तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट हो गए। मैंने मान के चले कमीशन लिया सर्विसेज पे, तो क्या होगा? और कौन से अकाउंट में जाएगा ये? मैंने कंप्यूटर खरीद लिया, तो कंप्यूटर कौन से अकाउंट में जाएगा? रियल अकाउंट में। तो डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? डेबिट होगा, क्योंकि वो रिसीव आ रहा है। मैंने कंप्यूटर बेच दिया। आपको समझा इतनी बात? पक्का समझ में आया? यही है। अगर आपको इतना आ जाता है आपको टैली आ जाएगा। समझ में क्या आ जाएगा आपको? टैली आ जाएगा। फिर बाद में ये सारे, ये जितने तुम बोले ना, फर्नीचर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, टेलीफोन एक्सचेंज, टेलीफोन का बिल भरा, सैलरीज भरा, ये सब नाम आ रहे हैं ना हमारे पास। सैलरीज, टेलीफोन बिल्स, या रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, या परचेस ऑफ फर्नीचर, या पेड टू इनायत, या बॉट फ्रॉम इनायत। ये सब नाम क्या है? इस नाम को क्या बोलेंगे हम लोग? ये नाम को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? ये नाम रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। ये जितने आ रहे हैं ना, ये अफेक्ट हो रहे हैं ना, ये सब रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। और इनका, इसी नाम को लेके हम क्या बनाते? लेजर अकाउंट बनाते हैं। मतलब एक इनायत का लेजर अकाउंट बनेगा, उसके दो साइड होंगे। कौन से दो साइड होंगे? लेफ्ट डेबिट, और अभी मैं इस तरफ आ रहा हूँ, ध्यान देना। इनायत का अकाउंट बनेगा, मैं इनायत का अकाउंट बनाया, मैंने इनायत को मैंने पैसा पे किया, और इनायत का लेजर बनाया, उसके दो कॉलम, दो साइड बनाया, लेफ्ट और डेबिट और क्रेडिट। अब मैं आपको पूछता हूँ, ओके, इनायत ने अगर मेरे को पैसा दिया तो इनायत के वो लेजर अकाउंट में मैं कहाँ लिखूँ? लेफ्ट में लिखूँ या राइट में लिखूँ? सर इनायत का नाम आएगा ही नहीं ना, आएगा? उसका लेजर है तो उसका नाम तो इनायत ने, मैं लिखूंगा ना, मैं लिखा हूँ ना, इनायत का मैं अकाउंट बना रहा है। सुनो मेरी बात, इनायत का मैं अकाउंट, क्लास है शायद, ओके, इनायत का मैं अकाउंट बना रहा हूँ, करेक्ट? सुनो मेरी बात, इनायत को लिखो ना, इनायत अकाउंट लिखो ना मेरे इसमें, ऊपर इनायत अकाउंट लिखो।
तो अभी इनायत का मेरे को अकाउंट, तो इनायत के साथ में क्या हुआ है, सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड एंट्री क्या हुई है, इनायत का मैंने लेजर बनाया ना, तो जैसे आपने कहा कि इनायत को अभी लिखेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि इनायत का ही लेजर बना हुआ है, तो उसके साथ में हुआ क्या था, दूसरा इफेक्ट क्या हुआ था, इनायत के साथ में क्या हुआ था, दो चीजें हुई थी, मैंने सामान उसको बेचा था, उसने पैसा ये किया था, करेक्ट है ना। तो अभी दो चीजें भी इनायत के साथ में, तो इनायत के अकाउंट में मेरे को दो चीजें लिखनी है कि इसको सामान बेचा गया है और इसने पैसा दे दिया है। तो जब इसने सामान बेचा तो मेरे पास से सामान क्या गया, गुड्स क्या हो गया है, गुड्स क्या गया मेरा, सोल्ड हो गया, तो गया ना, बाहर गया ना, गुड्स किस में आएगा, रियल अकाउंट में, गुड्स क्या हो गया मेरा, बाहर चला गया। तो मैं इनायत के कौन से कॉलम में, इनायत के जो दो कॉलम है उसमें किधर लिखूंगा, राइट साइड में लिखूंगा या लेफ्ट साइड में लिखूंगा, मेरी बात समझ में आ रही है तुमको। देखो इनायत को मैंने सामान बेचा ना, अभी दो साइड है, तो मैंने अगर इनायत के राइट साइड में लिख दिया, क्या लिख दिया कि गुड्स गया, तो गुड्स क्रेडिट हो गया, गुड्स क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अगर मैंने इनायत को बेचा तो इसका मतलब इनायत ने गुड्स को क्या किया है, परचेज किया। तो अगर गुड्स क्रेडिट में लिखा गया है इसका मतलब क्या हो गया, इनायत ने वो गुड्स को परचेज किया है, और इनायत ने वो अकाउंट देख के आपको समझेगा, राइट साइड में अकाउंट देखो क्या क्या समझ में आएगा कि ये गुड्स क्या हुआ है, परचेस हो गया है, और किसने परचेस किया है, इनायत ने परचेस किया है। कौन से डेट को परचेस किया, डेट लिखी हुई रहेगी। अब इनायत ने मेरे को कैश दिया, इनायत ने मुझको कैश दिया, तो कैश आई क्या गई, कैश क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, लेकिन किसके अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, किसके अकाउंट, किसके तरफ से आई मेरे को, मेरा पूरा अकाउंट मेरा ही है ना, तो इनायत के अकाउंट में डेबिट, तो मुझको पता चलेगा कैश किसके तरफ से आई, इनायत के तरफ से आई। आप समझ में आया तुमको। तो ये जो एंट्री है ना, एंट्री इसके दो पार्ट थे, क्या दो पार्ट थे, एक तो इनायत ने परचेस किया और गुड्स परचेस किया, दो पार्ट कौन से थे, इनायत। तो मैंने जब इनायत का अकाउंट लिखूंगा तो उसमें मेरे को पता चलने का है कि इनायत अकाउंट में क्या क्या हुआ है इसके साथ में। तो गुड अगर परचेस हुआ है तो चला गया मेरे पास से गुड्स, तो इनायत के राइट साइड में लिखा जाता है कि ये गुड्स चला गया है, ये इनायत ने परचेस किया है, और कुछ दिया इनायत ने मेरे को, चाहे गुड्स दिया है कुछ भी दिया, वो किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में। जो इनायत को गया है वो किधर आएगा, जो मेरी इधर से गया वो किधर आएगा। दूसरा चीज, दूसरा भी अकाउंट बनाना, दूसरा लेजर भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे तीन लेजर बनेंगे, तीन लेजर, तीन चीजों की बात हो रही, बोलो तीन लेजर बनेंगे। कौन से तीन लेजर बनेंगे, एक तो इनायत बनेगा, दूसरा कौन सा बनेगा, आप में से बोलो, गुड्स बनेगा, और तीसरा कौन सा बनेगा, कैश बनेगा। कितने अकाउंट्स बनेंगे, तीन अकाउंट, तीन लेजर बनेंगे। तीन लेजर अकाउंट बनाना मेरे को जरूरी है। कितने लेजर बनाना जरूरी है, तीनों अकाउंट देख के मेरे को समझ में आना चाहिए कि इनायत का अकाउंट देखूंगा तो मुझको पता होना चाहिए कि कितना सामान इसको बेचा गया है, कितना पेमेंट हमने रिसीव किया है। गुड्स देखने के बाद पता चलना चाहिए कि किसको गुड्स बेचा गया है और किससे गुड्स परचेस किया गया है, तो इसलिए गुड्स को बनाना भी जरूरी है। तीसरा क्या है, किसको कैश दी गई है और किससे कैश सी हुई, तो तीनों डिफरेंट अकाउंट बनाना पड़ते हैं, तीनों डिफरेंट लेजर बनाना पड़ेंगे। दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, लेजर अकाउंट्स। ये तीन लेजर बनेंगे तो जितने भी इफेक्ट करेंगे अकाउंट्स, उनके सारे के सारे लेजर बनाना जरूरी, लेकिन बार बार नहीं बनाना चाहिए। एक बार आपने कैश बना दिए ना, फिर कैश किसी के साथ में भी इफेक्ट होगा तो वही लेजर में चला जाएगा, आप समझे, वही लेजर में चला जाएगा। तो आपको वो चीज जानना बहुत जरूरी। ये देखिए, ये आपका लेजर आ गया, लेजर समझ में आया। ये लेजर के दो साइड्स है, लेजर के दो साइड्स है, कौन से, डेबिट है, देखो वहां पे डेबिट लिखा हुआ है, राइट में क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट लिखा है, इसको लेजर बोलते हैं। ये हर अकाउंट का लेजर आपको बनाना है, चाहे कैश आपका हुआ, चाहे गुड्स का हो गया, सब लेजर इसको बनाना। लेकिन इसको क्या डेबिट लेफ्ट में लिखेंगे, क्या राइट में लिखेंगे, वो किस पे डिपेंड करता है, वो एंट्री पे डिपेंड करता है। अभी देखो यहाँ पे एंट्री पे ये डिपेंड करेगा कि क्या लेफ्ट में होगा, क्या राइट में। और एंट्री कैसे मिलेगी आपको, आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट मालूम होना जरूरी है। यू नीड टू नो द टाइप्स ऑफ अकाउंट। कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट है, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल।
अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से एंट्री को पास किया जाता है, किस तरह से लेजर में अकाउंट को पोस्ट किया जाता है, एंट्री को किस तरह से पोस्ट किया जाता है। उसको एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग के सामने एक एग्जाम्पल जो है आपके सामने, ये 1 सितंबर 2024 को एक ट्रांजैक्शन हुई है। गुड्स वर्थ ₹50,000 सोल्ड फॉर कैश। गुड 50,000 का गुड्स बेचा गया है कैश में। अब इसको हमको पहले एंट्री में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, उसके बाद इसकी हमको पोस्टिंग करना ज़रूरी है। तो एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एंट्री कॉलम की तरफ अगर देखोगे, आपको एंट्री कॉलम की तरफ पहले सबसे पहले एंट्री कॉलम की तरफ देखते हैं कि डेबिट कैश अकाउंट को डेबिट किया गया और गुड्स अकाउंट को क्रेडिट किया गया। मतलब कैश अकाउंट डेबिट हुई और गुड्स अकाउंट क्रेडिट होगी। अब यहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लॉ क्या है, अब डेबिट और क्रेडिट का जो लॉ जो गोल्डन रूल्स है उसकी तरफ आते हैं। यहाँ पे 3 गोल्डन रूल्स दिए गए, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये 3 रूल्स दिए गए हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब इसको लेके हमको वो एंट्री बनानी है, ट्रांजैक्शन से हमको एंट्री बनानी है। तो हम लोग की जो एंट्री है गुड्स और कैश है दोनों भी रियल अकाउंट है, तो इस पर रियल अकाउंट का लॉ पास होता है, रूल पास होता है। और रियल अकाउंट का रूल्स ये है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल अकाउंट का रूल है। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या डेबिट हुआ है, मतलब क्या कम्स इन और क्या गोज आउट, क्या बाहर गया हुआ है। तो पता चलता है कि गुड्स हमारा बेचा गया तो गुड्स गोज आउट है, गुड्स बाहर चला गया और कैश इन हो गई, कैश कम्स इन हो गई है, तो कैश हमारे पास आई है। अब इसके लिए हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसी तरह से हमने देखा कि कैश कम्स इन है तो कैश को हम डेबिट कर रहे हैं, और गुड्स गोज आउट है तो गुड्स को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। अब इसके बाद ये एंट्री पास करने का जो तरीका दिया हुआ है कि एंट्री किस तरह से लिखी जाती है, वो सामने आप देखोगे तो आपको नजर आएगा नीचे जो बाय लिखा हुआ है, बाय कैश अकाउंट टू गुड्स अकाउंट। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी कि जो ऊपर जो चीज़ लिखी गई है बाय कैश मतलब क्या होता है कि कैश अकाउंट डेबिट होगा। बाय हमेशा लिखा नहीं जाता है, बाय डिफॉल्ट जो नहीं लिखा जाता है साइलेंट होता है करके। और टू गुड्स, टू का जब आप लिख देते हो इसका मतलब जो भी टू के साथ में आ जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा, वो क्रेडिट होगा। टू गुड्स जो भी आएगा वो क्रेडिट होगा। तो इस तरह से एंट्री को लिखा जाता है जनरल में। अब इसके बाद हम इसको पोस्ट करेंगे। पोस्ट करने के लिए हम लेजर अकाउंट की तरफ आ रहे हैं। आपको लेजर अकाउंट नजर आ रहा है, नीचे लेजर अकाउंट है, क्रेडिट साइड है और डेबिट साइड आप देख रहे हो, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड देख रहे हो। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि चूंकि कैश अकाउंट का अपन लेजर हम लोग लेजर बना रहे हैं, कैश अकाउंट का लेजर हम लोग बना रहे हैं, तो कैश अकाउंट में जो एंट्री पास हुई, जो कैश अकाउंट जो डेबिट हुआ है, तो उसके डेबिट में हम क्या लिखेंगे, उसके डेबिट में हम लिखेंगे टू गुड्स लिखेंगे। यानी मतलब कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। लेकिन क्यों डेबिट हुआ है, क्या चीज़ की वजह से डेबिट हुआ है, तो हमने देखा कि गुड्स चला गया था और गुड्स क्या था, हमारे एंट्री में क्रेडिट था। तो जो टू है वो टू बताता है कि गुड्स वहाँ पे क्रेडिट था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू गुड्स अकाउंट। क्या लिखेंगे हम, टू गुड्स अकाउंट लिखेंगे। मतलब कैश अकाउंट लेजर बनाया, डेबिट और क्रेडिट बनाया, उसमें डेबिट साइड में हमने लिखा टू गुड्स अकाउंट और डेट लिख कर अमाउंट लिख दी। ये हुई आपकी पोस्टिंग। इस तरह से हमको लेजर में इसको पोस्ट करना ज़रूरी होता है। लेजर में पोस्ट करने के बाद में हम फाइनली उसका बैलेंसेस मालूम करते हैं, क्या बैलेंसेस आए करके, और फिर उसको ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उससे बैलेंस शीट और अदर स्टेटमेंट को जनरेट करते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दूसरे स्क्रीन पे हम लोग आए हुए हैं, वहाँ पे हम लोग देखेंगे और एक एंट्री जो 3 सितंबर 2024 को हुई, गुड्स वर्थ ₹80,000 सोल्ड टू रमेश ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे जो है वो क्रेडिट पे बेचा गया है और यहाँ पे कैश की ट्रांजैक्शन नहीं हुई। फिर हम लोग आगे जाते हैं और थर्ड एंट्री देखते हैं, 7 सितंबर 2024 रिसीव्ड ₹50,000 फ्रॉम मिस्टर रमेश, पार्ट पेमेंट फॉर द क्रेडिट सेल मेड अर्लियर। अब यहाँ पे जो तीसरी ट्रांजैक्शन है उसमें हमने जो सेकंड ट्रांजैक्शन में जो गुड 80,000 का बेचा है उसमें से ₹50,000 हमको रिसीव हो गए हैं। अब उसकी एंट्री सेम कैश अकाउंट में जो हमने लास्ट टाइम में देखे थे कैश अकाउंट में कैसी पोस्ट की जाएगी, तो सबसे पहले जो कैश हमको रिसीव हुआ है, अगेन कैश रिसीव हुआ है किससे, रमेश से हुआ है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डायरेक्ट कैश गुड्स पे बेचा था, तो गुड्स पे जब हमने कैश किया तो डायरेक्ट टू गुड्स हो गया था, लेकिन अभी रमेश से रिसीव है तो रमेश गिवर हो गया है और कैश रिसीव हो गया, तो रमेश हमारा पर्सनल अकाउंट है और कैश हमारी रियल अकाउंट है। तो हमको अभी ये देखना है कि अगर रमेश गिवर है तो दूसरा लॉ जो है हमारा क्रेडिट द गिवर वाला लॉ जो है वो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वहाँ पर हमेशा क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो गिवर है, कैश रिसीव है, रियल अकाउंट है तो डेबिट हो जाएगी। तो जो उसकी एंट्री है वो ऐसी होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। अब इसको जब हम पोस्ट करेंगे कैश अकाउंट में तो आप देखोगे कि कैश अकाउंट में कैसे हमने पोस्ट किया, उसको लिखा है टू मिस्टर रमेश अकाउंट, मतलब क्योंकि कैश डेबिट थी यहाँ पे, तो टू मिस्टर रमेश अकाउंट लिख के उसको डेबिट किया गया ₹50,000।
अभी हम लोग और एक ट्रांजैक्शन देखते हैं। 10 सितंबर को 2024 को पेड रेंट ऑफ ₹15,000 फॉर द ऑफिस। अभी अपने ऑफिस का रेंट पे किया, इसका मतलब हमारा कैश चला गया और रेंट चूंकि हमारा नॉमिनल अकाउंट है वो एक्सपेंसेस में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कैश आपकी गई है, नॉमिनल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, लॉस का डेबिट का, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेंट को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। अब जो कि कैश यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप देखो लिखा हुआ है बाय रेंट अकाउंट 15,000। अभी और एक एंट्री हम लोग देखते हैं जो सैलरी एंट्री 15 सितंबर 2020 को पेड सैलरी फॉर ₹25,000 टू एम्प्लॉय, उन्होंने सैलरी पे, ये भी एक्सपेंसेस अकाउंट है, यहाँ पे भी सैलरी अकाउंट डेबिट होगा और आपका कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बाद नीचे देखेंगे क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट की क्या लिखा, बाय सैलरी अकाउंट 25,000। बाद में हम बैलेंसेस टैली करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे उसको और फिर इस तरह से लेजर में ये पोस्टिंग होती है। अब इसको डिटेल में हमको जानना है, डिटेल में हमको इसको पढ़ना है, कितनी बहुत सारी एंट्रीज है हमारी, तो इसके लिए हमको ज़रूरी है कि हम एक एक एंट्री और एक एक ट्रांजैक्शन को प्रॉपर पोस्ट करें, उसकी एंट्री बनाए और फिर हम क्या करेंगे, हम फिर इसको पोस्ट करेंगे, फिर इसे ट्रायल बैलेंस और लेजर होंगे। तो हमको इस तरह से टैली को आगे कंटिन्यू करना है। जब आप टैली स्टार्ट करोगे तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको लेजर ग्रुप्स क्रिएट करने होते, लेजर अकाउंट क्रिएट करने होते और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वाउचर के जरिए फिर डेबिट और क्रेडिट करना है। आगे हम टैली को ओपन करेंगे और टैली को देख के टैली के इंटरफेस से समझने की कोशिश करें।